کلام خدا میں لکھا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے ایمان لائیں۔ آمین۔ آپ تمام کو سبت بہت بہت مبارک۔ کوئی گواہی دے گا خدا کا کلام زندہ ہے؟ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ خداوند یسوع مسیح کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اے مسیح رحم کر، اے خدا رحم کر۔ اے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے اب ہم دشمن ابلیس سے، بدروحوں سے، لعنتوں سے، بیماریوں سے، جادوگری سے چھڑائے گئے ہیں۔ ہمارا بدن پاک روح کا مقدس ہے، اور خدا کا پاک روح اس میں بسا ہوا ہے۔ ہم دشمن کے روبرو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے پورے طور پر محفوظ ہیں۔ آمین۔ لکھا ہے ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو اس کلام پر غور کرتے ہو، کیونکہ یہ ایک چراغ ہے، پریز گاڈ، جو اندھیری جگہ پر روشنی بخشتا۔ ایک ویسے مت بنی ہوئی ہے الادین کا چراغ، لیکن یہ کلام الادین کے چراغ سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ آمین۔ آئیے مقدس کلام پر غور کریں۔ اسی آیت پر ہم پھر سے آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے یا آیات پڑھی ہیں، مقدس مرکز کی انجیل ہے 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے۔ ایلڈر صاحب اگر رہنمائی کریں 15 سے 18۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ پریز گاڈ۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری تمام خلقت کے لیے ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تمام خلق کے سامنے جا کر کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ کیا پائے گا بھائی؟ لیکن جو ایمان نہ لائے وہ، سن لیں بات، بڑی پتے کی بات ہو رہی یہاں پر۔ کلام کہہ رہا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ تو نجات پائے گا نوجوان، لیکن جو ایمان نہ لائے اور بپتسمہ نہ لے وہ مجرم۔ سوچیں مجرم کو ہمیشہ کیا دی جاتی ہے؟ اسے کبھی کوئی سافٹمنٹ نہیں دیتے، نہ ہی آپ اسے سافٹ ڈرنک دے سکتے، بٹ ہی اور شی ڈیزروز کیا؟ وہ سزا کا حقدار ہے۔ اگر سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر آپ اور میں بچ سکتے ہیں۔
फिर रोमियो 8वें बाब में लिखा है, पस जो मसीह खुदावंद में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं होता। हालेलुया। कोई FIR नहीं कर सकती उन पर, कोई सजा नहीं हो सकती उन पर, क्योंकि वो बरी हो चुके हैं। और लिखा, अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम आज़ाद हो। और अंग्रेजी में जो बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, इंडीड यू विल फ्री, कि यकीनन तुम क्या होगे, आज़ाद होगे। हालेलुया। सो आइए बाइबल मुक़द्दस में से, खुदा के कलाम में से चंद एक बातें हम देखेंगे, किस तरह से आप और मैं या खुदा साबित कर सकता है कि ये कलाम सच्चा है। हाँ जी, ऑडियंस में से भी आपके लिए भी आज़ादी होगी कि किस तरह से कोई आपसे पूछे, अच्छा जी ये खुदा का कलाम है, आप कैसे इसे साबित करते हैं कि ये सच्चा है। हाँ, गो के लिखा हुआ है बाइबल मुक़द्दस में। आइए मेरे साथ एक हवाला निकाले, मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील 17वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है जी। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 17 जी। पाक कलाम में यूं लिखा है, उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। आमीन। उन्हें सच्चाई के वसीला से क्या कर, मुकद्दस कर, क्योंकि तेरा कलाम क्या है, सच्चाई है। ये तो क्लेम हो गया ना बाइबल का, ये तो क्लेम है, भेद दावा है। लेकिन अब इस दावे को सच्चा या झूठा भी तो साबित किया जा सकता है ना, सही है। अगर कोई शख्स दावा करता है, कोई झूठा आदमी हो दावा कर दिया, कैसे पता लगेगा कि उसका दावा झूठा निकला? कैसे? जब आप उसकी हकीकत तक पहुंचेंगे आपको पता लग जाएगा फलां का दावा सच्चा नहीं है। तो नासिर भाई, अगर कुछ शख्स ये दावा करे, जी बहुत सारी अक़वाम आलम के अंदर आपको पता है, इर्द गिर्द के लोग भी कहते हैं जी इंजील बदल गई है, कलाम बदल गया है, सही है। तो कैसे आप और मैं साबित करेंगे कि इंजील या खुदा का कलाम, उसका जो दावा है वो बिल्कुल मुस्तनद है, सच्चा है और रिलायबल है? हाँ जी। जब तक हम खुद उस पर कायम पाबंदियां और यकीनमंद नहीं होंगे, नहीं पढ़ा होगा, नहीं जानते होंगे, तो हम कोई भी गवाही, कोई भी टेस्टिमनी नहीं दे सकेंगे। ठीक है, ये तो शाबाश। हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा जिंदा खुदा है, हम उस पैगंबर को मानते हैं जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, सलीब पे उसकी कब्र पा। ये बेटे दावा हो गया, ये दावा हो गया। ये दावे को तो मैंने यहाँ पर बयान कर दिया, लेकिन अब इस दावे का सिद्क होना, सादक होना लाजम है। जब इसको पढ़ते तो पाक रूह, सच्चाई से पढ़े तो आपके अंदर पाक रूह महसूस होता है, दूसरे को पता। जब आप जिंदा कलाम पढ़े तो आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी। ये तो आपकी फीलिंग्स हो गई, ये मेरी फीलिंग्स हैं, सही है कि जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ वो क्या है, सिद्क है और सच्चाई है। आइए मैं आपको बाइबल मुक़द्दस में से, चूँकि कलाम वो है जो अपनी सच्चाई खुद बयान करता है, सही है। आइए बाइबल मुक़द्दस में से, आपको याद होगा कलाम, अच्छा जो शख्स सच्चा होगा उसकी बात भी क्या निकलेगी, खरी निकलेगी ना। जब उसकी पहचान कर लेंगे, पता इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच पड़ताल होगी, पता लग जाएगा अच्छा जी फलां बंदा क्या है, सच्चा है भाई, बिल्कुल ठीक कह रहा है। सो बाइबल मुक़द्दस में आपको याद होगा बुजुर्ग अब्राहम से खुदा ने एक वादा बांधा कि तेरी सुलभ से एक बेटा होगा। इस्माइल आ गया, लेकिन अभी तक वादे का फर्जंद नहीं आया, और वो सोचने लगा बुजुर्ग अब्राहम शायद इसी से मेरी नस्ल होगी। लेकिन खुदा ने आकर अब्राहम से कहा कि जो तेरी सुलभ से होगा, इसहाक की बाबत खुदा ने वादा किया था। गो कि उसमें वक्त लगा, कितने साल लग गए थे उसमें? 24 साल का अरसा दरकार, और 24 साल का अरसा लग गया, लेकिन क्या वादा पूरा हुआ? जी हाँ, वादा पूरा हुआ। सो कलाम खुदा में खुदा ने बनी इसराइल के बारे में, पता है आपको, बाइबल मुक़द्दस में वादा किया कि वो जो ज़मीन पर तितर बितर हो गए हैं, मैं उनको फिर से एक जगह पर बसाऊंगा। 1947 में आपको पता है पूरी दुनिया में अहले यहूद फैले हुए थे, पूरी दुनिया में थे। कोई ग्रोह यहाँ पर है, कोई वहाँ पर है, उनके पास कोई अपना मुल्क नहीं था। लेकिन 1947 के अंदर हिस्ट्री और तारीख गवाह है कि खुदा ने उन तमाम तर बच्चों को फिर से जमा कर लिया।
جو کچھ بائبل مقدس میں کہا گیا، جب وہ اس کی پیشن گوئیوں پر آپ غور کریں گے اور وہ پوری ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کلام کیا ہے جی؟ یہ صدق ہے، اس میں سچائی ہے، اس میں خداوند کی طرف سے بخشی ہوئی روشنی ہے۔ آپ کو یاد ہے بزرگ یسایہ نے ایک نبوت کی تھی، ایک کماری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ مقدس متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے پھر ایک کماری کیا ہوئی؟ حاملہ ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ کلام جو کچھ کہتا ہے، جو نبوت کرتا ہے، وہ نبوت کیا ہو جاتی ہے؟ سچی ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کیا ہے بھائی؟ ریلائبل ہے، اس پر آپ اور میں ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ کلام خدا میں آپ کو پتا ہے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے حوالے سے پہلے سے جب وہ بزرگ یسایہ نے پیش گوئی کی، اگر آپ یسایہ 53واں باب پڑھیں تو کلام کہتا ہے کہ اس کی صورت تمام بنی آدم سے زیادہ بگڑ گئی۔ صحیح ہے؟ اس کی پیٹھ پر لکھا ریگاریاں بنائی گئیں اور پھر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج اور اسے مارا گیا۔ زبور 22 کے اندر بھی خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا ذکر ہے۔ پہلے سے بتایا گیا کہ دیکھ تیرا بادشاہ، اگر آپ زکریا 9ویں باب کی 9ویں آیت پڑھیں کہ تیرا بادشاہ جو ہے وہ گدھے کے بچے پر سوار ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں نئے عہد نامے میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب ایک اور بات جس کو لے کر میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ کون سی ایک دوسری بات ہے جس کا ہونا ضروری ہے اس کلام کے مطابق۔ اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر بھی یہ کلام سچا نہیں ہے۔ آئیے مقدس مرکز کی انجیل اور اس کا 16واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ آمین۔ یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب شاگردوں نے منادی کرنا شروع کی، خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینا شروع کی، تو لکھا ہے وہ اس کلام کو ان معجزوں سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ یاد رکھیے اگر انجیل صدق ہے، انجیل قابل بھروسہ ہے، تو پھر جہاں انجیل کی گواہی ہے وہاں پر کیا ہونے چاہیے؟ وہاں پر کیا ہونے چاہیے بھائی؟ وہاں پر صرف لنچ نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر صرف جب وہ کوئی اچھے کھانے نہیں ہونے چاہیے، جیسے کلام میں لکھا ہے خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ اس محبت پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے دی جاتی۔ کئی ایک چرچز میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کھانے اور ڈنرز تو چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، پارٹیز تو ہو رہی ہیں، کولڈ ڈرنکس بھی آ رہی ہیں، سب کچھ، لیکن بائبل مقدس میں انجیل کا ثابت ہونا کیسے ہے؟ کلام خدا میں لکھا ہے وہ اس کلام کو ان معجزوں سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے کیا کرتا رہا؟ ثابت کرتا رہا۔ آمین۔ تو کون کون سے معجزے بائبل مقدس میں لکھے ہیں، کون کون سے معجزے ہوئے، ہم انہی آیات پر پھر دیکھیں گے۔ جی 15ویں آیت سے، بلکہ ابھی 16ویں آیت، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ کون سے معجزے ہوں گے؟ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ پہلی بات لکھی ہے وہ کیا کریں گے؟ خداوند یسوع مسیح کے نام سے بد روحوں کو نکالیں گے۔ پریز گاڈ۔ ایسا نام جس نام سے کیا ہوتی ہیں؟ بدروہیں نکل جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں، یہ یسوع نام ہے۔ آمین۔ کیا خداوند یسوع مسیح کی حیات اقدس میں سے جب یسوع مسیح زمین پر تھے کیا بدروحوں کو نکالا؟ آئیے بائبل مقدس میں سے ایک واقعہ دیکھتے ہیں، گو کہ متعدد واقعات ہیں، بہت سارے۔ سو کلام خدا میں آئیے ایک حوالہ ہم دیکھتے ہیں، مقدس متی کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 22ویں آیت۔ اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی
आए खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरूह मेरी बेटी को बहुत सताती है। कलाम खुदा में लिखा है कनानी खातून है, यीशु मसीह के पास आई है और कहती है कि खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर दे, रहम कर दे, क्योंकि एक बदरू मेरी बेटी को सताती है। क्या बात है, ऐसी माएँ जो अपने बच्चों की फिक्र रखने वाली हों। कई माँ बाप को अपने बच्चों का पता ही नहीं होता, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें उनको सता रही हैं, लेकिन माँ बाप को होश ही नहीं है। कलाम खुदा में लिखा है ये खातून बाखबर है, शी इज मच अटेंटिव, उसे पता अपने घराने के बारे में कि मेरी बेटी पोजेस्ड है, शी इज नॉट वेल, शी इज अवेकन। और वो खातून क्या है, वो जाग रही है। यीशु मसीह ने भी कहा था जागो और दुआ करो, आमीन। और कहाँ पहुंच गई, यीशु मसीह के पास आ गई है अपनी सप्लीकेशन लेके। आगे क्या लिखा, फिर क्या हुआ, मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया। अच्छा खैर, बाइबल मुकद्दस में ये पूरा वाकया लिखा, यीशु मसीह ने जवाब ही नहीं दिया था पहले पहल। तो हो सकता है जब आप और मैं भी अपनी दरख्वास्तें खुदा के पास लेकर जाएं, पहले पहल आपको और मुझे भी ऐसे ही लगे कि कोई जवाब, लेकिन बाइबल कहती है इन द एंड क्या हुआ, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जा तेरी बेटी आज़ाद हो गई है। शी वॉज टोटली हील्ड। और खुदावंद यीशु मसीह के कहने के बायस वो खातून क्या हो गई थी, जब यीशु मसीह का जवाब सुना तो फिर वापस घर में गई और देखा उसकी बेटी क्या हो गई है, शिफा पा गई। फिर लिखा है जब रसूलों ने मुनादी की तो रसूलों की ज़िंदगी में भी बदरवा क्या हो गई थी, वो भाग गई थी। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जब रसूलों ने गवाही दी तो बहुत से रसूलों के अमाल को अगर आप पढ़ें तो बहुत सारे वाक़यात हमें मिलते हैं कि जहाँ पर जब रसूलों ने गवाही दी तो यीशु मसीह के नाम से बदरूहें क्या होने लगी, भाग गई। दूसरी बात क्या होगी, आमीन। आपको याद होगा ईद पेंतीकोस्त पर जब रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ, मुकद्दस रसूलों के अमाल दूसरे बाब की पहली चंद आयात, और लिखा 120 की जमात एक जगह जमा थी। और वो कैसे दुआ कर रहे थे वाला, वक्रो वक्री नसन दुआ कर दे। लिखा एक दिल होकर, लोग जमा भी हो जाएंगे लेकिन एक दिल नहीं होते। कई दफा इबलीस बड़ा मकार है, एक दिल नहीं होने देता, कहीं ना कहीं वो फुट डाल देता है। डिकन साहब ऐसा है, जमा हो जाएंगे आप लेकिन यूनाइट नहीं होने देगा। लेकिन बहरहाल यूनिटी रूहुल कुद्दस ज़रूर दे देता है। अगर खुदा के पाक रूह को दावत दी जाए तो फिर खुदा आपको और मुझे एक भी कर देता है। कलाम में खुदा में लिखा है कि जब वो एक दिल होकर दुआ कर रहे और फिर रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ और आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें, हाँ जी कैसी भला, आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें उन पर क्या हो गई। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो ज़बान नज़र आ रही थी उन्हें ये टंग नज़र आ रही थी, पता है आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें उन पर ठहर गई और उन्होंने मुनादी में रसूलों की फिर क्या की, मदद की। तब लिखा है कि वही रसूल जो खौफज़दा है, मुकद्दस पतरस ने उसी वेन्यू पर पता है यीशु मसीह का इनकार कर दिया था 3 बार। वही जगह है, वही मकाम है, लेकिन अब मुकद्दस जो पतरस है बदला हुआ शख्स है और उसने यीशु मसीह की गवाही दी है। और कितने लोग तब्दील हो गए, याद है किसी को? 3000 लोग एक ही दिन में तब्दील और बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं। तो कलाम खुदा में लिखा है बदरूहें भी निकलेंगी और फिर वो नई नई ज़बानें बोलेंगे और क्या करेंगे, और वो क्या करेंगे, सांपों को उठा लेंगे। हेड साहब अब देखिए कलाम में तो लिखा हुआ है एल्डर बुट्टा साहब कि वो क्या करेंगे, सांपों को उठा लेंगे। तो जाके सांप चुक लोगे, बिल्कुल चुक लोगे। वो पता है जो बीन बजाते हैं है ना, लेकिन क्या यहाँ पर यही बात लिखी है कि सांपों को उठा लेंगे?
गो बाइबल मुक़द्दस में एक ज़िक्र है रसूलों के अमाल में, अगर आप पढ़ें और गालिबन उसका 28वां बाब है 5वीं 6ठी आयत में, जब एक जजीरे पर मुक़द्दस पौलुस रसूल और उसके साथ और कैदी थे, तब लिखा एक सांप उसके हाथ से लिपट गया था। जब उसने गर्मी पाई, आग जलाई हुई थी उन लोगों ने, और लिखा है जैसे गर्मी पाकर वो बाहर निकला और रसूल के हाथ पर वो लिपट गया और रसूल ने उसको क्या किया? लेकिन क्या रसूल ने खुद जाकर सांप को उठाया था या सांप खुद वहां पर आकर चिपट गया था? सांप चिपट गया या जाके चुकिया सी उन्हें? नहीं, चिपट तो हो गया था, नहीं, खुदावन की तरफ से था, वो लोग यकीन नहीं कर रहे थे। शाबाश। लेकिन रसूल ने वहां पर जाकर कोई सांप नहीं उठाया, लेकिन यीशु मसीह की तालीम है वो सांपों को क्या करेंगे? उठा लेंगे, जहरीली चीजें भी पी लेंगे और उन्हें कोई जरर नहीं होगा। इसका जवाब बाइबल मुक़द्दस में दिया गया। ये जरा निकाली मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 19वीं आयत। आगे और चीज़ां आ गई जी, सुनो 19 वर्स जी, 10वें बाब की 19वीं आयत। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब पाओ। पहले तो सांप थे, अब साथ में बिच्छू भी आ गए जी। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें क्या दिया है? आई हैव गिवन यू अथॉरिटी, कि तुम सांपों और बिच्छुओं को क्या करोगे? और आगे क्या लिखा? आगे जवाब लिखा है वैसे, हाँ, और सारी कुदरत पर गालिब पाओ। नहीं फिर से पढ़िए। अच्छा, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया हाँ। कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन हाँ, दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या आओ? गालिब हो। तो हमारा दुश्मन कौन है बताइए भी जरा जल्दी से। और इब्लीस का नाम क्या है? वो पुराना सांप। जी हाँ, ये है हमारा दुश्मन। और यीशु मसीह जब बात कर रहा है सांपों बिच्छुओं को कुचलोगे, मतलब ये नहीं कि मैं हुण जनाब वेख्या भी जोगी ने तो फड़िया चुक्या सांप ते मैं भी चुक लवां, ना ना भाई, डंग मारेगा वो, काट जाएगा आपको। यीशु मसीह इब्लीस की बात कर रहा है। अगर कोई बिलीवर है, ईमानदार है, तो खुदा क्या करेगा? उसे इख्तियार देगा इब्लीस पर और उसकी सारी कुदरत पर। खुदा क्या करेगा? आपको मुझे इख्तियार दे देगा। तो कलाम मुक़द्दस में एक और हवाला भी देख लें जिससे और हमें साबित हो जाए ये क्या बात है। बुजुर्ग यसाया का सहीफा है 43वां बाब उसकी 2री आयत। द बुक ऑफ आइज़ाया 43:2। यसाया 43वें बाब की 2री आयत। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा। जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी। आमीन। क्या आप सोच सकते हैं अगर आप आग में हो और आपको आंच ना आए? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल मुक़द्दस ये फरमा रही है कई एक जगहों पर जब खुदा के जो रसूल थे मुसीबत ज़दा होंगे, गवाही देंगे मेरी खातर। जैसे आपको याद है जब सदरक मिसक अब्दनजू कहाँ पर थे? आग में थे। लेकिन जब गवाही की बात है कि खुदा सच्चा है, ये दुनिया के बुत सच्चे नहीं है, लोकां दे बुत सारे झूठे थे, ना चीज़ है। जब खुदा अपने आप को साबित कर रहा होगा तो खुदा इंजील की खातर, गवाही की खातर क्या करेगा? आग को भी क्या कर देगा? आपके लिए ठंडा चश्मा बना देगा, नदियां भी नहीं डुबोएंगी। और फिर बाइबल मुक़द्दस में लिखा है सैलाब भी तुझे कोई नुकसान ना पहुंचाएगा। तो बाइबल मुक़द्दस में ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे। किन के दरमियान मौजे होने चाहिए भाई? और क्या, और कौन सा मौजा आगे लिखा है उसी आयत पर? रसूलों के अमाल 16वें बाब की 18वें। पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। आमीन। बाइबल मुक़द्दस में लिखा वो बीमारों पर क्या हाथ रखेंगे और वो अच्छे हो जाएंगे। सुनिए जरा गौर से, ईमानदार जब बीमारों पर हाथ रखें तो बीमार क्या होने चाहिए? आपको याद है जब खुदावन यीशु मसीह सेंट पीटर के घर में गए और लिखा है उसकी सास क्या थी? तप में थी और यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखा और तप उस पर से उतर गई। हालेलुया। ईमानदार हाथ रखेंगे और क्या पा जाएंगे लोग? शिफा पा जाएंगे।
तो याद रखिए बाइबल मुकद्दस बताती है खुदा ना सिर्फ पेशन गोइयों के वसीला से कलाम को साबित करता है, बल्कि खुदा उन मौजों और अजीब कामों से भी कलाम को साबित करता है। आइए ज़रा एक हवाला मेरे साथ निकालिए, मुकद्दस लूका की मार्फ लिखा हुआ खुदा का कलाम रसूलों के अमाल है, 2 बाब उसकी 22वीं आयत। ये भी सेंट लूक ने लिखा है, रसूलों के अमाल 2 बाब की 22वीं आयत। ऐ इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। आमीन। ऐ इस्राएलियों, अब ये खुदा के खादम बुजुर्ग मुकद्दस पतरस का ये वाज है और वो वाज पेश कर रहा है लोगों के दरमियान दिलेरी से। ऐ इस्राएलियों, हाँ जी, क्या कहा आगे? ऐ इस्राएलियों, ये बातें सुनो, ये बातें सुनो। जी पढ़ते जाइए। ऐ इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जी जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ। खुदा अपने कलाम को यीशु मसीह की जिंदगी के वसीला से कैसे साबित कर रहा है? मौजज़ों और निशानों के जरिए से। तो अब यीशु मसीह ने आखिरी वक्त के लिए, और फिर जब यीशु मसीह ने शागिर्दों को दुनिया में भेजा तो क्या कहा भाई? हाँ जी, यीशु मसीह ने जब भेजा है जी एल्डर साहब, वही उसी आयत से पढ़िए आप 19वीं आयत से। जी, गर्ज खुदावन यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की। अच्छा, पहले यीशु ने तालीम दी है, सही है, शुरू में कि मेरे नाम से क्या होंगे? ये मौजज़े होंगे जी। और खुदावन उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं, लेकिन आसमान पर उठाए जाने के बाद भी यीशु मसीह उन मौजज़ों को, कलाम खुदा में लिखा है कि वो उस कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। तो याद रखिए दूसरी बड़ी निशानी क्या है जी? कलाम सिदक है। उसमें क्या पाए जाएंगे? जो ईमान लाएंगे उनके दरमियान क्या होंगे भाई? सिर्फ बपतिस्मा नहीं लेंगे वो लोग, सिर्फ तालीम नहीं पाएंगे वो लोग, सिर्फ वहाँ पर बातें और गुफ्तगू नहीं होगी, बल्कि वहाँ पर कुदरत भी साबित होगी। यानी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से क्या होंगे भाई? मौजज़े होंगे, बीमारों पर हाथ रखे जाएंगे और बीमार क्या हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर कलाम किसी जगह पर हो रहा है, किसी चर्च में हो रहा है, तो फिर जरूरी क्या है? वहां पर क्या होने चाहिए? वहां पर क्या होनी चाहिए? शिफा होनी चाहिए। वहां पर जब वो बदरू हैं क्या होनी चाहिए? ठंडे जे पे आ गए की गल है। यीशु मसीह के नाम से जहां गवाही दी जा रही है वहां बदरूहें गायब होनी चाहिए। अगर बदरूहें गायब नहीं हो रही तो समझ जाएं यीशु आपके साथ काम नहीं। अगर बीमार चंगे नहीं हो रहे तो समझ जाएं यीशु आपके साथ काम नहीं। अगर नई नई ज़बानें नहीं हैं, खुदा की मार्फत और हिकमत नहीं है, तो समझ जाएं यीशु काम नहीं कर रहा। लेकिन बाइबल मुकद्दस का ये दावा है, होने चाहिए कि नहीं मौजज़े? कि जहां इंजील है, जहां पर यीशु मसीह के रसूल हैं, वहां पर मौजज़े भी होंगे, वहां पर शिफा भी होगी, वहां पर नई नई ज़बानें भी होंगी, वहां जिंदगियां भी तब्दील होंगी और लोग बरकत भी पाएंगे। आमीन। तो आइए आखिरी नुक्ता जो मैं आज आपके लिए छोड़े जाता हूं, किन के दरमियान मौजज़े होंगे? वो जेड़े बड़े तैयार तीर होके आएंगे हैं, जो टाई पहन कर आए या नया सूट पहन कर आए, जो पाक इशा में शामिल हों या बपतिस्मा लें, किन के दरमियान?
ایمان لانے والوں کے درمیان۔ اگر معجزہ نہیں ہو رہا آپ کی زندگی میں، اپنے ایمان کو چیک کریں۔ پھر یسوع مسیح نے کہا بس غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو۔ یسوع مسیح نے ایک جگہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ یسوع مسیح نے کہا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا ایمان ہو، صحیح ہے؟ تو کلام کہتا ہے کہ یہ ایمان، یسوع مسیح نے اس کنانی عورت کو کہا تھا کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی کئی ایک لوگوں کا بڑا ایمان ہوتا ہے اور خدا ان کو بلیس کرتا ہے، لیکن آج جو مسیحی ہیں وہ آج کے مسیحی صرف نامی مسیحی رہ گئے ہیں، صحیح ہے؟ ناصر مسیح، صرف نام کا مسیح رہ گیا ہے، اس میں ایمان کا ایلیمنٹ۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہ سبت کے دن خدا کا کلام سننے آتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے گھر میں کب پادری صاحب نے لاسٹ وزٹ کیا یا پادری صاحب کو کال کی، پادری صاحب میرے گھر میں آئیں، میرے بچوں کو کلام سنائیں، تاکہ یہ ایمان سے کہیں برگشتہ نہ ہو جائیں، ان کی زندگی میں ایمان کی افزائش ہو۔ اور ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے بھائی ذرا بتائیے؟ یہ فلمیں دیکھنے سے ہو جاتا ہے ایمان، تو ہے نا؟ ایسا ہی ہے، یہ نئے نئے ڈرامے دیکھیں گے یہ ایمان تب پیدا ہوگا آپ کا، ایسا ہی ہے نا؟ کلام خدا میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ سوچیں ذرا، کیا اگر معجزہ نہیں ہو رہا، شفا نہیں آ رہی، تو مسئلہ ہے میرے ایمان میں کہیں نہ کہیں، میں کلام نہیں سن رہا، میرے بچے کلام نہیں سنتے، میرا گھرانہ کلام نہیں سنتا، صحیح ہے؟ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھ، کئی خان صاحب تے میں ہمیشہ ہی ویکھے نے، میرے خان صاحب کئی میں پروگراماں تے لے گیا تے خان صاحب نوں میں ویکھاں کتے چلا گیا، خان صاحب ورشپ ہوئی اور خان صاحب کا پتہ نہیں لگا، میں کہا پتہ نہیں بزرگ ایلیاں کو چکیا گیا۔ جی ہاں، کئی واریاں بھی لاندے ہوئے جا کے، ایسا بھی ہے بالکل۔ سو بائبل مقدس میں یاد رکھیے خدا کا کلام کیا ہے بھی معتبر ہے، اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ آئیے آج اپنے ایمان کو خدا کے حضور چیک کریں کہ خداوند ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہونے چاہیے؟ معجزے ہونے چاہیے۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئیے خداوند کے حضور جھک جائے اور دعا کریں خداوند کے حضور۔ اپنی آنکھیں بند کیجیے۔